With the Supreme Court, forming a 10-member task force on the RG Kar hospital and increasing the ambit of the suo motu proceedings to a larger issue of the security and the safety of the medical health professionals, we are being joined by one of the interveners and Advocate Tanvi Dubey, who will tell us what was her application and what is the observations from the top court today. Ma'am, what was your intervener application? My intervener is with respect to certain doctors association. The main concern which is raised in the applications is that there is a nationwide uproar on the safety of doctors. So we cannot wait for another rape incident to happen in any other hospital. Main concern in the application is to provide safe working environment, not only for women doctors, but also for male doctors. In the hospitals, they are doing 36 hours duty. There is not even a proper rest area. There are no proper washrooms available. So basically the interventions is for safety and security of doctors as a whole, nationwide safety of doctors, to ensure that there is a protocol to be followed nationwide for the security and safety of the health force. A lot of things were also said about the West Bengal government that, the timing of the FIR, the conducting of the post-mortem, informing of the death, claiming it to be a suicide to the family members. What do you say about that, ma'am? Yes, you're right. So this concern was brought, and time and again it was mentioned both by the Solicitor General and also from the opposite side that this issue, let this not be political. However, as regards the registration of FIR, this point was, pointed by the Honorable Chief Justice that why was there such a big delay in the registration of FIR? Secondly, again, the point came down that the police security and safety is not sufficient and adequate, and it's not been handled appropriately. When there was, in a sealed envelope, a letter was handed over to the Chief Justice with a concern of a resident doctor that the environment in the hospital is not very safe and secure for them to even stay now. So by what surety can the doctors stay in the hospital now, because they are getting innumerable threats, and the contents of course were not read out of the letter, but the essence was that the environment is not very safe. So ultimately the CISF has been directed to provide the security to the hospital and also to the hostels. So this was a major concern that, the registration of, why was there such a big lack in the registration of the FIR? Because when the body was handed over to the parents at night, after that the FIR was registered. So all of these details, the counsel for the state, Mr. Kapil Sibal, will be submitting day after tomorrow when the matter is again listed. So the CBI probe is also under the guise of the Supreme Court now. The Supreme Court has asked the CBI to submit a status report as to what they have done after the Calcutta High Court had handed over the CBI probe to them. So what will happen on August 22nd, ma'am? First of all, the report of the CBI and the report of the police with respect to different FIRs and the timing of the FIRs, that will be submitted to the Supreme Court. Apart from that, as the National Task Force has been today, mentioned by the Chief Justice, that to protect the doctors, there will be a protocol which will be nationwide protocol which will be followed by the doctors. So on that also various stakeholders will have a say. So, there are various intervention applications been filed. So whosoever has a different say, today also while rising, the Chief Justice said that we will want to hear all the doctors, what are their concerns, so that, in this national task agenda which has been formulated, those concerns are also been incorporated. So all of these things will be taken care of, and I think it will be a hearing in which different stakeholders are been heard, and prima facie the report, the details of the FIR, charge sheet, all of that has been placed. So here we are with Advocate Tanvi Dubey, who's clearly saying that August 22 will be a crucial hearing in the RG Kar Hospital suo motu proceedings, with the Chief Justice of India asking all the doctors to resume their work back because the nation at large is suffering from health services that are paralyzed for now. सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स थी उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए ना कि उस इंसिडेंट को संज्ञान में लिया है, बल्कि जो देश के तमाम डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं. उसके साथ हम
रोहित पांडे सर के साथ हैं, जो एक इंटरवीनर है इस केस में। उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था सर। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अहम टिप्पणियां की सर। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए काम आएंगी? बिल्कुल, आज आज डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली स्वतः संज्ञान लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं कि उन्होंने इस केस की बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया है और ये कहा है कि रेप और मर्डर और ब्रूटल मर्डर इस तरीके का जो हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये घिनौना अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज को कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने बताया और उन्होंने एक कमेटी गठित की। उन्होंने कहा कि अब गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि ऐसे गाइडलाइंस की जिनको सुरक्षा कैसे देनी है, उनको सेफ्टी कैसे देनी है, इसकी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, इसकी भी जानकारी उन्होंने ली कि एफआईआर कब हुई, कंप्लेनेंट कौन था, वहां कौन कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे और कितने लोगों की जिम्मेदारी वहां बनती थी, कोलकाता पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी, उन सब पे सवाल उठाया। और कोलकाता पुलिस पे तो यहाँ तक भी कहा कि उसका कंडक्ट ठीक नहीं था। उसका कंडक्ट ठीक नहीं होने की वजह से कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को भी एक जिम्मेदारी दे दी कि आप वहां पर जहां पे वो रेजिडेंट्स हैं, जहां पे वो डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए वहां पे उनको डिप्यूट किया गया। क्यों इसलिए किया गया क्योंकि कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वो बहुत काबिले तारीफ नहीं थी। कह सकते हैं कि आप बहुत ही संदेहास्पद था कि वो ठीक से नहीं कर पाए, तो इसलिए सीआईएसएफ और को भी उनको डिप्यूट करने के लिए कहा गया। वेस्ट बंगाल सरकार को भी काफी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं टाइम पे पेरेंट्स को बताया गया विक्टिम के, क्यों नहीं टाइम पे बॉडी, कैसे टाइम पे पहले सुसाइड बताया गया फिर बाद में कुछ और। सर, सुप्रीम कोर्ट का क्या था रुख? देखिए एफआईआर, देखिए ये दो चीज हुई इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो 8 सवा 8 का बताते हैं और उसके बाद जो है वो 11 साढ़े 11 बजे पौने 12 बजे के एफआईआर बताते हैं। तो ये जो इसके लिए थोड़ा गंभीरता से उन्होंने इस चीज को लिया कि इतना टाइम क्यों लगाया आपने, कि इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी। तो कोर्ट को कन्विंस जो है करने की बात की गई थी स्टेट ऑफ बंगाल की तरफ से, बट वो बहुत ही फुल प्रूफ बातें उनकी नहीं थी कि जिससे कि वो समझा पाए। लेकिन फिर भी कोर्ट का तो पूरा ये रुझान इस बात का था कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा नहीं होने चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ऐसे इंसिडेंट जो हुए हैं वो उसके लिए उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया और कोर्ट ने जो है बहुत ही तरीके से एक प्रॉपर हियरिंग की है और कोर्ट ने एक बहुत डिटेल में अपना एक ऑर्डर किया है। उस ऑर्डर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैसला होगा एक डॉक्टर्स के लिए, इंटर्न्स के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए, नर्सों के लिए। 10 मेंबर कमेटी जो बनाई है, आपको क्या लगता है कि वो कंसर्न सॉल्व कर पाएंगे उन डॉक्टर्स के लिए जो 2400 घंटे हम लोगों के लिए काम करते हैं? अभी तक के जितने भी कानून बनाए गए हैं, अभी तक जितने भी लॉज बनाए गए हैं, उसको सब कुछ उसको देखने के लिए उसको आज के दौर में और आज के टाइम में क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या गड़बड़ियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हॉस्पिटल्स में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं डॉक्टर्स को, क्या क्या दिक्कतें आती हैं नर्स को, क्या क्या दिक्कत आती हैं इंटर्न्स को, वहां की सारी फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, कितना पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि ये 36 घंटे काम करते हैं ये लोग और हमारी जान बचाते हैं और इनका रोल एक तरीके से भगवान जैसा होता है। तो ये एक उनका कंसर्न था कि डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स को कैसे हमें सेव करना है, उनको कैसे सेफ्टी देना है, इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थी कोर्ट। सर, कोर्ट ने वैंडलिज्म पे भी बहुत सारी टिप्पणी की है और कोलकाता पुलिस से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सीआईएसएफ को ट्रांसफर कर दी और यही कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां की लोकल पुलिस से प्रोब सीबीआई को ट्रांसफर किया। आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है? देखिए जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा है और इतने हजारों में लोगों ने जाकर के वहां पे तोड़फोड़ मचाई है, इससे तो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई छुपी हुई बात है। तो इस तरीके की जानकारी अगर वहां की लोकल पुलिस को नहीं है, अगर लोकल पुलिस वहां ऐसे वारदात तो पता था उनको कि अगर आपको ये पता है कि एक इंसिडेंट हुआ है और एक हॉस्पिटल में किसी के साथ रेप एंड मर्डर हुआ है, तो आपको पता है कि इसके आगे फिर क्या होना चाहिए, उसके क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए, ये पुलिस को, वहां की लोकल पुलिस को देखनी चाहिए थी, उसमें वो विफल रही। आपको क्या लगता है 22 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस मामले की सुनवाई करेगा, सीबीआई की रिपोर्ट मांगी गई है, आपको क्या लगता है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर देखिए सीबीआई की रिपोर्ट, देखिए सीबीआई का काम जो है वो बहुत, देखिए एपेक्स एक आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। हमें राहत इस बात की होगी कि जो रियल कल्पिट्स हैं,
अभी तो एक एक को अरेस्ट किया है कि ऐसे मामले में। और जिस तरीके की अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी जो चोटें हैं वो किस, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी पीड़ा का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी दरिंदगी का, कि वो किस दरिंदगी के तरीके से उसने जो है उस पर वार किया और उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया है। तो इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के पास है। मुझे लगता है कि सीबीआई इसमें निष्पक्ष तरीके से इस पे जांच करनी चाहिए और जांच करके एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चीज आ गई है। सबसे बड़ी जीत हमें इस बात की होगी और उन डॉक्टर्स की जीत है कि आज सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं कोई कोताही कोई बरतेगा नहीं, और बरतेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये थे एडवोकेट रोहित पांडे, जो जिनकी पूरी होप है सुप्रीम कोर्ट से कि सीबीआई जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करेगा। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ कानू सारदा, आज तक के लिए।